dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I am sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take care of yourselves. Follow all the safety precautions. Follow all the basic hygiene rules and stay safe. And I hope the same for your family members also. Children, we are doing revision of chapter number 15. And chapter number 15 is Animals Around Us. In this chapter, we will learn about different types of animals and different groups of animals. These are the learning objectives of the lesson. Learning objectives, as I have already told you, मतलब पूरा लेसन पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखोगे. So the learning objectives are, that means लेसन पढ़ने के बाद you will come to know about different types of animals, मतलब कितने तरह के animals होते हैं, and what are the different groups of animals. जितने जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, they are divided into different groups. टाइप्स ऑफ एनिमल्स का मतलब है कि एनिमल्स की जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो उनकी मतलब वो किस क्या क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसके बेसिस पे एनिमल्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है. नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन टाइप ऑफ एनिमल विल कम अंडर वन ग्रुप ओनली. ऐसा नहीं है, ठीक है. It is not that. So, animals are divided into different categories, different groups. On the basis of their utility, वो हमें किस तरह से काम आते हैं, कहाँ रहते हैं, उसके basis पे उनको अलग अलग groups में भी divide किया गया है. So, in this lesson, we will learn about different types of animals and different groups of animals. Types of animals we have already done. There are 6 types of animals. These are insects, then water animals, then amphibians, reptiles, birds and mammals. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है. टुडे वी विल स्टार्ट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, वी विल जस्ट रिवाइज इन ब्रीफ टाइप्स ऑफ एनिमल्स. जो हमने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, उसको एक बार हम ब्रीफ में रिवाइज करेंगे आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले. ओके, सो टाइप्स ऑफ एनिमल्स. फर्स्ट टाइप इज इंसेक्ट्स. Insects are very small animals. They have 6 legs. Some of them can fly like butterfly, housefly, honeybee. ठीक है. Some cannot fly. कुछ जैसे लाइस है, बेड बग है, these cannot fly. ये उड़ नहीं सकते. And some have long tube-like structure in front of their mouth, like butterfly and cockroach. These are the pictures which you see in your book. These are just few examples. ये थोड़े से बस examples हैं. ऐसा नहीं है कि बस इतने ही insects हैं. There are lot many. बहुत सारे और भी हैं. Okay? Then insect कोई भी हो, it is not very good for our health. जैसे बस हनी बी है, हनी बी से हमें बटर हनी मिलता है. सॉरी, वो अपना बीहाइव जो बनाते हैं, एंड व्हेन दैट बीहाइव इज ब्रोकन एंड व्हेन इट इज बर्न्ड वी गेट हनी. हनी बी से हमें हनी मिलता है. बटरफ्लाईज आर ऑफ कोर्स वेरी ब्यूटीफुल, दे सिट ऑन द फ्लावर. बट अदरवाइज जैसे हाउस फ्लाई है, लाइस है, कॉकरोच है, ऑल दीज आर फाउंड एट डर्टी प्लेसेस. ओके, देन सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल्स आर वाटर एनिमल्स. Water animals, as the name says, water animals means animals that live in water. Water animals are also known as aquatic animals. A-Q-U-A-T-I-C. Aquatic animals. Because aqua means water. A-Q-U-A. Aqua. Aqua means water. So the animals that live in water are known as aquatic animals. And animals that live on land are of course land animals. There are lot of different varieties of plants also which are found in water.
पानी में बहुत तरह के प्लांट्स भी मिलते हैं एंड दे आर नोन एज एक्वाटिक प्लांट्स। जैसे एक्वाटिक एनिमल्स हैं वैसे एक्वाटिक प्लांट्स भी हैं, दैट इज प्लांट्स दैट आर फाउंड इन वाटर। ओके, सो एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर मेनली डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिश। जो पानी में एनिमल्स रहते हैं उनमें मेन क्या है, फिश है, क्योंकि फिश की बहुत सारी वैरायटीज है, फिश की बहुत वैरायटीज हैं। So there are variety of fish that live in water. Octopus is there, corals are there, sea anemones are there. Sea anemone is an aquatic animal. It is a water animal and it looks like a flower. Anemone is a flower. ठीक है, anemone जो होता है वो एक flower होता है, very bright and colorful. So sea anemone उसका जो structure है, it looks like anemone flower. That is why it is known as sea anemone. Corals are made up of very tiny animals. बहुत छोटे छोटे एनिमल्स जिनको पॉलिप्स बोलते हैं, उनसे पूरा मिल करके उनका पूरा कैसे उस पूरे से वो कोरल का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, सी हॉर्स इज अ टाइप ऑफ फिश ओनली बट इट्स फेस लुक्स लाइक अ हॉर्स। जो सी हॉर्स होता है उसका फेस हॉर्स की तरह है, लंबा सा सामने, and that is why it is known as seahorse. It is a variety of fish only. So in water, mainly the animals, octopus, of course we all know about octopus. It has 8 tentacles. उसका एक फेस होता है, उसको कहते हैं ना 8 हाथ होते हैं. It has got 8 tentacles. ठीक है, ऑक्टोपस अगर किसी भी फिश को या इवन किसी ह्यूमन बीइंग को भी अगर पकड़ लेता है तो उससे निकलना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्केप बिकॉज इट हैज गॉट 8 हैंड्स। वो उसको दबाता जाता है एंड द पर्सन और कोई भी एनिमल है इट गेट्स क्रश्ड, बिल्कुल एकदम उसको क्रश कर देता है। सो these are water animals and in water we find different variety of different types of fish. This is starfish है, the shape is like a star, jellyfish है, ठीक है, then shark of course shark है, whale है, बहुत तरह के fish है। some are very dangerous, some are very poisonous, piranha है, कुछ एक fishes, मतलब of course some specific type of fishes are found in specific areas only। ऐसा नहीं कि हर जगह वाटर में, पानी में हर जगह जो हमें कॉमन जो फिश होती है बस वही सब जगह मिलती है, अदरवाइज जो स्पेसिफिक वैरायटी के फिश है वो हमें सब जगह नहीं मिलती है। लाइक डॉल्फिन इज ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ फिश, इट इज अ टाइप ऑफ फिश। सो दीज आर वाटर एनिमल्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एक्वाटिक एनिमल्स बिकॉज दे लिव इन वाटर। जैसे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स आर ऑल्सो देयर। देन थर्ड टाइप ऑफ एनिमल इज amphibians. Amphibians are the animals that can live on land as well as in water. Because AMPHI, amphi means both. Amphi का मतलब होता है दोनों। तो animals जो पानी में भी रह सकते हैं और land पे भी रह सकते हैं, they are known as amphibians. ठीक है? For example, toad है, frog है, frog water में भी रहता है, frog lives on land also. Toad also lives in water as well as on land. Salamander, newt जैसे मैंने बताया था, it is like a huge lizard, बहुत बड़ा सा lizard की तरह दिखता है। So these are some of the animals that are amphibians. That means they can live in water as well as on land. Then reptiles. Reptiles are the animals that crawl, जो रेंगते हैं। They are reptiles like types of snakes, lizard है, alligator है, crocodile है। There are so many different types of snakes, turtle, tortoise. These are the animals that come in the category of reptiles because they can crawl. जो animals crawl करते हैं excuse me, crawl मतलब जो रेंगते हैं जमीन पे, they are known as reptiles like lizard, snake, alligator, crocodile, tortoise, turtle. These are reptiles because they crawl on the ground. There are some variety of snake that is found in water also. बहुत कुछ एक snake की ऐसी variety है जो कि पानी में भी हमें मिलते हैं। तो water snakes are also there. So most of these reptiles, most spend their time on land, but there are some who spend a great deal of time in water also. जैसे लिजर्ड है, लिजर्ड वाटर में नहीं रहती है, पानी पे ही रहती है।
जो वाटर वाले स्नेक होते हैं दे आर डिफरेंट, लैंड वाले स्नेक होते हैं दे लिव ऑन लैंड ओनली, ठीक है। तो एलिगेटर है, क्रोकोडाइल है, दे लिव ऑन लैंड एज वेल एज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन वाटर ऑल्सो। जो एलिगेटर है या क्रोकोडाइल है दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन वाटर ऑल्सो, ये बहुत टाइम पानी में भी स्पेंड करते हैं और ये लैंड पे भी रहते हैं, जमीन पे भी वो अपना रिवर से बाहर निकल करके साइड में जो सैंड है या दलदल रेत जैसी रहती है या पूरा जो दलदल कीचड़ होता है उसमें आकर के वो पड़े रहते हैं एंड उनको देख के लगता है कि लाइक दे आर डेड, बिल्कुल भी नहीं मूव करते हैं, ठीक है। सो दीज आर रेप्टाइल्स। देन नेक्स्ट इज बर्ड्स। बर्ड्स को क्या कहते हैं? दे आर नोन एज आवर फ्लाइंग फ्रेंड्स एंड दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी एंड दे हैव विंग्स टू फ्लाई। जैसे हमारी बॉडी पे स्किन होती है, स्किन के ऊपर रोए होते हैं, तो दैट इज बाकी एनिमल्स की बॉडी पे भी जैसे रोए होते हैं, तो वो जो हेयर होते हैं दैट इज देयर प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट्स देयर स्किन। तो जो बर्ड्स होती है उनके स्किन पे यू विल फाइंड फेदर्स एंड दोज फेदर्स आर मेंट टू सेव द स्किन, उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फेदर होते हैं एंड दे हैव विंग्स सो दैट दे कैन फ्लाई। उनके पास विंग्स होते हैं और विंग से वो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। बर्ड्स हैव बीक्स। बर्ड्स की बीक होती है, दे डू नॉट हैव टीथ लाइक अदर एनिमल्स। जैसे दूसरे एनिमल्स के टीथ होते हैं, दे डू नॉट हैव टीथ, दे हैव बीक, उनकी चोंच होती है। ऑल द बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक, किसी की सबकी बीक का शेप अलग होता है, सबकी बीक का साइज अलग होता है, सबकी बीक का कलर भी डिफरेंट हो सकता है, बट दे यूज देयर बीक फॉर ऑल द पर्पज। उनको जमीन से कुछ ट्विग उठाना हो, कोई खाने की चीज उठानी हो, कुछ भी काम करना है, दे डू इट विद देयर बीक। इवन व्हेन दे फाइट, जब आपस में लड़ते हैं तो भी वो अपनी बीक यूज करते हैं। सो दे यूज देयर बीक फॉर ऑल द पर्पज, ठीक है। उनके दांत क्योंकि होते नहीं है तो वो बीक से उठा करके, कभी आप बर्ड्स को देखोगे तो वो बीक से पिकअप करके वो अपना मुंह के अंदर डाल लेते हैं। बीक से ही छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, छोटे इंसेक्ट्स हैं, जो भी उनको जमीन से पिकअप करना होता है वो अपनी बीक से ही पिकअप करते हैं। जैसे सारस जो होता है, सारस क्रेन जो वाटर में खड़ा रहता है, उसके पतले पतले पैर होते हैं, लंबी सी बीक होती है। सो इट पिक्स, जो पानी में रहता है, पानी में जो छोटी छोटी फिश और दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं वो उठा उठा करके वो खाता है, वो अपना मुंह में डाल लेता है। सो बर्ड्स हैव beak, different birds have different shapes, different size of beak and they do not have teeth. Then next is, here you can see some examples like parrot, pigeon, ostrich, peacock, all these are some examples of birds. Birds बहुत छोटे भी होते हैं, थोड़े बड़े birds भी होते हैं, like eagle, hawk, vulture, kite, they have very sharp beak. इनकी जो beak होती है वो बहुत sharp होती है, जो इससे eagle है, काइट है, हॉक है, वल्चर, इसको हिंदी में गिद्ध बोलते हैं, बाज बोलते हैं, चील बोलते हैं, उनकी जो बीक होती है दैट इज वेरी शार्प, बहुत आगे से बहुत पॉइंटेड होती है। ओके, देन नेक्स्ट इज मैमल्स। मैमल्स आर द एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज। जो मैमल्स होते हैं वो अपने बेबीज को पैदा करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑफ बर्ड्स, उनके जो बेबीज है वो एग में से निकलते हैं, व्हेन द एग्स हैच, but mammals give birth to their babies. So we human beings are also mammals. हम भी mammals की कैटेगरी में ही आते हैं। And you must have heard कि बहुत 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 thousands of years ago we were also animals. Human beings जो थे वो भी animals थे। तो we are also mammals because we give birth to our babies. तो जो animals अपने babies को birth देते हैं they are known as mammals. For example, cat, dog, cow, एलिफेंट, ह्यूमन बींग्स, वी आर, तो हम तो है ही मैमल, दीज आर एनिमल्स आर ऑल्सो मैमल्स। फिश में भी ओनली व्हेल एंड डॉल्फिन, दीज टू आर मैमल्स। रेस्ट ऑफ द फिश गिव एग, एक बार में बहुत सारे एग्स देते हैं वो लोग, वो रिलीज करते हैं। तो व्हेल और डॉल्फिन, these two fish are mammals. So they live in water, ये तो फिश है, they live in water. Rest all other mammals live on land only. Elephant is the largest land animal, so therefore it is the largest mammal on the land. And blue whale is a mammal and it is the largest mammal and largest animal on the earth. अर्थ पे, पूरे अर्थ पे सबसे बड़ा एनिमल जो है वो दैट इज ब्लू व्हेल। ओके।
The biggest mammal is the blue whale. It lives in water, and the biggest mammal on land is elephant. लैंड पे सबसे बड़ा मैमल जो है वो एलिफेंट है. सो देयरफॉर एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड एंड ब्लू व्हेल इज द बिगेस्ट मैमल इन वाटर एंड इट इज द बिगेस्ट एनिमल इन वाटर. सो देयरफॉर इट इज द वाटर में, जैसे मैंने बताया, ओनली फिश लिव्स, जो वाटर एनिमल्स है. तो फिश में सिर्फ डॉल्फिन एंड व्हेल, दीज आर द ओनली टू मैमल्स. Blue whale is the biggest mammal in water on land. Blue whale is the biggest mammal on land. पूरी धरती पे सबसे जो बड़ा mammal है और animal. It is the biggest mammal and biggest animal as well on land. It lives in water. If somebody asks which is the biggest animal on land, so that is blue whale. Elephant is the biggest mammal and biggest animal on land. Blue whale is the biggest mammal on earth. पूरी पृथ्वी पे जो मिला करके, मतलब that includes animals on land as well as on water. वाटर और लैंड के एनिमल्स को मिला करके जो ब्लू व्हेल है वो सबसे बड़ी मैमल है, सबसे बड़ा एनिमल है. एलिफेंट जो है वो धरती पे सबसे बड़ा एनिमल है. ओके, सो these are the different types of animals. Okay, these are the different types of animals. Now children, we will start with groups of animals. अभी हम करेंगे groups of animals. Groups of animals. Now, animals can be divided into 3 groups. एनिमल्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. दीज आर वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स. ये 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट एनिमल्स. नाउ लेट अस सी what are wild animals, what are domestic animals, and what are pet animals. So first type is wild animals. Wild animals. जंगली जानवर सबने सुना होगा, जंगली जानवर. ठीक है, जंगली जानवर कौन से होते हैं? जो जानवर जंगल में रहते हैं. तो जंगली जानवरों को इंग्लिश में वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. द एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट, दे आर नोन एज वाइल्ड एनिमल्स. द एनिमल्स who live in forest are known as wild animals. For example, lion, bear, fox, etc. Animals can be divided into 3 groups, that is wild, domestic and pet. These are the 3 groups: wild animals, domestic animals and pet animals, जिसमें कि हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट group is wild animals. What are wild animals? Wild animals are the animals that live in forest. जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं. ठीक है. नाउ स्नेक, जैसे स्नेक है, स्नेक इज
अ रेप्टाइल, ठीक है, जो एनिमल्स के अलग अलग टाइप है, स्नेक इज अ रेप्टाइल. बट व्हेन वी डिवाइड इट इनटू ग्रुप, स्नेक कम्स इन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बिकॉज इट लिव्स इन फॉरेस्ट. ठीक है, जो फॉरेस्ट में ही रहता है स्नेक, दैट इज वाई इट इज वाइल्ड एनिमल. इट इज अ वाइल्ड एनिमल. अभी जैसे लायन है, टाइगर है, दीज आर एनिमल्स. ये इंसेक्ट में भी नहीं आते हैं. दे आर नॉट एम्फीबियंस, दे कैन नॉट लिव इन वाटर, देन दे आर नॉट रेप्टाइल्स ऑल्सो. दीज आर नॉट बर्ड्स ऑल्सो. These are not water animals. These are not mammals. Some of the wild animals, of course, are mammals, like elephant. Elephant is a mammal. ठीक है, अगर हम टाइप की बात करेंगे तो elephant is a mammal. Lion also give birth to its baby. Lion है, tiger है, they also give birth to their babies. So if we talk about type of animal, then elephant is a mammal because it gives birth to its baby. लेकिन जब हम इसको अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो एलिफेंट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बिकॉज इट लिव्स इन फॉरेस्ट. एलिफेंट को हम एज पेट एनिमल या डोमेस्टिक तो रख नहीं सकते. एलिफेंट इज सो ह्यूज, सो एलिफेंट्स लिव इन फॉरेस्ट ओनली एंड दे लिव इन ग्रुप्स. एलिफेंट जो होते हैं वो कभी इंडिविजुअल अकेले नहीं रहते हैं. जैसे लायन है, टाइगर है, बेयर है, वो अपना अलग अलग भी रहते हैं. बट जो एलिफेंट्स होते हैं दे लिव इन ग्रुप. वो पूरा उनका हर्ड बोलते हैं ग्रुप को. दे मूव इन ग्रुप. पूरे ग्रुप के साथ वो एक साथ वो मूव करते हैं. जब उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है इन सर्च ऑफ फूड, सो दे मूव इन ग्रुप्स ओनली. सो एलिफेंट इज अ मैमल बट इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है, सो वाइल्ड एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट. जो जंगली जानवर होते हैं जिनको कि हम घर पे नहीं रख सकते, उनको हम डोमेस्टिकेट भी नहीं कर सकते, एंड वी कैन नॉट कीप देम एज पेट ऑल्सो. देन सेकेंड टाइप इज डोमेस्टिक एनिमल्स. Second type of animals are, second group of animals is domestic animals. Domestic animals जो होते हैं they can be kept at home also and at farms also. Some of the domestic animals can be kept as pet. जैसे कुछ domestic animals हैं उनको हम as pet रख सकते हैं, like cow. जैसे काउ है, काउ को बहुत सारे लोग एज डोमेस्टिक एनिमल, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल एंड काउ को बहुत लोग घर पे एज पेट भी रखते हैं. ठीक है ना. जैसे गोट है, गोट डोमेस्टिक भी है एंड गोट को बहुत लोग एज पेट भी रखते हैं घर पे. मुर्गी है. डोमेस्टिक एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट आर हेल्पफुल टू अस, जो हमें किसी तरह से हेल्पफुल है. लाइक गोट, काउ, बफेलो, दे गिव अस मिल्क, जिससे हमें मिल्क मिलता है. मुर्गी से हमें वी गेट एग फ्रॉम हेन. पीपल कीप शीप, शीप भेड़ों से क्या मिलता है, भेड़ पालते हैं, शीप पालते हैं, उससे हमें वूल मिलता है. सो डोमेस्टिक एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट आर हेल्पफुल टू अस. दीज एनिमल्स आर helpful to us. Okay, we keep them at farm. For example, cow, horses, sheep, goat, etc. Like as I told you, we can keep cow as pet also. काउ को हम घर में एज पेट भी रख सकते हैं. गोट को, क्योंकि बहुत सारे लोग घर में काउ रखते हैं मिल्क के लिए. लॉट ऑफ पीपल कीप गोट एट होम. गोट रखते हैं, गोट से भी हमें मिल्क मिलता है. कुछ लोग hen मुर्गी पालते हैं. बट नॉर्मली हॉर्स है, शीप है, दीज आर केप्ट एट फार्म. जैसे लोग जो डेयरी वगैरह चलाते हैं, जिनका डेयरी का काम होता है, तो वहां पे लोग दे कीप लॉट ऑफ काउज एंड बफेलोज इन लार्ज नंबर. जो लोग डेयरी का काम करते हैं, जैसे जहाँ पे मिल्क और से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो दे कीप काउज एंड बफेलो इन लार्ज नंबर. सो सम ऑफ द एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, कैन बी केप्ट एट होम.
बट जैसे शीप है, हॉर्सेज है, हॉर्स को हम घर पे नहीं रख सकते बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ केयरिंग। या तो किसी का बहुत बड़ा पैलेस जैसा घर हो और बहुत बड़ी जगह हो, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अदरवाइज पीपल कीप हॉर्सेज एट फार्म ओनली बिकॉज हॉर्सेज को बहुत केयरिंग की जरूरत होती है, हॉर्सेज को बहुत एक्सरसाइज चाहिए, उनको रनिंग करानी होती है, उनका पूरा मसाज करना होता है टू कीप देम इन गुड शेप, विच इज नॉट पॉसिबल एट होम। तो हॉर्सेज जो अपने फार्म पे रहते हैं, उनके स्टेबल में रहते हैं, दे हैव, मतलब जो लोग हॉर्सेज पालते हैं, घोड़े जो पालते हैं, दे हैव सेपरेट मेन फॉर ईच हॉर्स। हर एक हॉर्स के लिए अलग अलग लोग होते हैं टू टेक केयर ऑफ देम, उनको पूरा नहलाना, उनको खाना देना, उनका पूरा मसाज करना, जिससे कि उनके जो लेग्स हैं वो स्ट्रांग बने। हॉर्सेज का काम है, उनको जो रेस वगैरह के लिए दौड़ाते हैं तो उनके लेग स्ट्रांग होने चाहिए, तो उनको मसाज करना होता है, उनको रेगुलर एक्सरसाइज करानी होती है, दौड़ाना होता है, तो हॉर्सेज को लोग फार्म पे ही रखते हैं। शीप है, जैसे जो भेड़ होती है, भेड़ को भी लोग घर पे, नॉर्मली कोई घर पे भेड़ सिंगल में नहीं रहती है। भेड़ ऑल्सो जो शीप है वो भी पूरे ग्रुप में रहती है, ठीक है। जो शीप होती है दैट इज ऑल्सो केप्ट इन अ ग्रुप, बहुत सारी शीप एक साथ रहती है। कभी रास्ते में आप देखोगे कि कभी किसी के पास आपको एक सिंगल शीप नहीं मिलेगी, पूरा उनका ग्रुप चलता है, शीप का पूरा ग्रुप चलता है। पीपल कीप शीप फॉर वुल, ऊन के लिए लोग शीप पालते हैं, तो शीप को भी फार्म पे रखते हैं। सो मोस्ट ऑफ दीज डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट एट फार्म। अधिकतर जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको फार्म पे रखते हैं, कुछ एनिमल्स को हम एज पेट घर पे भी रखते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर हेल्पफुल टू अस, लाइक वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, बफेलो, गोट, और हमको फिर शीप से वूल मिलता है, हेन से वी गेट एग्स। और हॉर्सेस को जो है लोग हॉर्स कैरेज में भी लगाते हैं। हॉर्सेस बहुत जगह सामान उठाने के भी काम में आते हैं। सो दीज एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, आर द एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू अस, हेल्पफुल टू अस। देन थर्ड टाइप ऑफ एनिमल्स आर पेट एनिमल्स। थर्ड टाइप इज पेट animals. Pet animals are the animals which are kept at home. Pet animals जो होते हैं उसको लोग अपने घर पे रखते हैं, ठीक है। These animals live in our homes. For example, dog, cat, fish, parrot. Some people keep rabbit also, rabbit, etc. ठीक है। So pet animals जो होते हैं, they are friendly animals, so friendly होते हैं, and they are kept at home. उनको जिन एनिमल्स को हम घर पे रखते हैं, they are known as pet animals. Okay, dog है, cat है, fish, parrot, rabbit. Some people keep squirrel also. गिलहरी भी बहुत लोग पालते हैं, ठीक है ना। पैरट की there are different varieties of parrot. So parrot is a bird, but when we divide, parrot is a bird, fish is a water animal, parrot bird है, fish water animal है, cat, dog, these are four-legged animals. So all these belong to different types, ठीक है। फिश अलग टाइप ऑफ एनिमल है, वाटर एनिमल है। पैरट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, इट इज अ बर्ड। डॉग एंड कैट, दीज आर फोर-लेगेड एनिमल्स, बट व्हेन वी डिवाइड देम इन ग्रुप, दीज ऑल कम इन वन ग्रुप ओनली, ठीक है। पैरट है, फिश है, डॉग, कैट, रैबिट, दीज ऑल कम इन वन ग्रुप, दैट इज पेट एनिमल्स। सारे एनिमल्स को, like some of the domestic animals, as I told you, कि कुछ हम डोमेस्टिक एनिमल्स को एज पेट घर पे रख सकते हैं। वी कैन कीप गोट, वी कैन कीप काउ, वी कैन कीप बफेलो, ठीक है ना, वी कैन कीप hen, but all the domestic animals cannot be kept as pet. Pet animals live with us in our home. They are very friendly to us, and after some time they become part of the family. जिसके घर में भी पेट एनिमल होगा, आप देखोगे धीरे 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 करके
they become a part of the family. We get so attached to them, they also get so attached to us. एनिमल्स जो होते हैं वो हमसे इतने ज्यादा अटैचमेंट उनका हो जाता है, हम उनको इतना प्यार करने लग जाते हैं, वो भी हमको इतना प्यार करते हैं. सो दे बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली, जैसे वो हमारी एक फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द एनिमल्स दैट कैन बी केप्ट एज पेट एनिमल्स. ठीक है. I hope children this is clear. So we have done different types of animals and we have done different groups of animals. Okay. In the next class we will do the homes and babies of some of the pet animals and homes and babies of some of the domestic animals. Okay children. So today I will stop here only. Thank you so much.